The company that has remained steadfast and kept the right principles. The company headed toward the world with the right principles. The company that grows with its customers and shares generously. We are Atomy. Atomy, which has been growing ever since its establishment in 2009, achieved 2.2 trillion Korean won in global sales in 2002 and surpassed 15 million global members. Atomy's #1 goal of going beyond customer satisfaction to customer success continues to be its top priority to this day. Providing good quality products at reasonable prices, Atomy's competitiveness lies in the nature of distribution. The absolute quality and absolute price product philosophy that Atomy has practiced since its inception is included in all of its products such as health functional foods, beauty, living, food, fashion, home appliances, and more. Atomy Hemohim surpassed 2 trillion Korean won in cumulative sales, ranked #1 in domestic health functional food exports. It has gotten international patents in 21 countries and is forging a unique new path for health functional food products. Absolute Skincare, which has become one of the best-selling cosmetics in the industry with sales of 100 billion Korean won every year since its launch. Absolute Cell-Active Skincare received King Sejong Award from the Korean Intellectual Property Office in 2021 for the first time in the cosmetics industry and was selected as world-class product for next generation selected by Ministry of Trade, Industry and Energy in 2022. The Fame, another luxury cosmetic product reborn with upgraded ingredients and technology, is also loved by consumers as it reflects Atomy's product philosophy. Atomy practices customer-centered management in all its business activities, and such efforts were recognized by the acquisition of Customer-Centered Management Certification for 2 consecutive years, which is a unique accomplishment in the industry. Starting with the U.S. branch in 2010, Atomy is a global company which opened 25 branches in Asia, South America, Oceania, Europe, etc., with 15 million members worldwide. It opened branches in Brazil, Mongolia, and Uzbekistan in 2022. And starting with Germany in 2023, it is planning to open 20 branches within the next 5 years. Atomy's GSGS strategy, which stands for Global Sourcing Global Sales, allows the supply of products that align with the absolute quality and absolute price philosophy through Atomy's global sales network. Atomy's Success System, in which the company runs all seminars, allows any member to succeed regardless of individual ability. This is the driving force behind Atomy's distinctive growth. The next generation of online and offline distribution broadcasters, which presents Atomy's vision to members around the world regardless of time and space. Entertainment and media, which converges business and culture. Atomy provides the vision of a global success system, which transcends time and space by providing a variety of services. For our partner companies to pay the utmost attention to quality, Atomy provides various support measures for partnering companies such as cash payment within 1 week from delivery, interest-free operating fund loans, and joint quality management systems, among others. These create a culture of accompanied growth.
Sharing is a mission that all companies must fulfill. Atomy's executives, employees, partnering companies, and members all practice sharing together to improve the lives of all members of society. Wherever sharing is needed around the world, global branches will be united to support happiness for all. The company that holds true to its principles while creating a new distribution culture. The company expanding globally with the trust of people around the world. The company that dreams of customer success while moving beyond customer satisfaction. The company that cherishes the spirit. We are proud Atomy. Jayanta ji, please, over to you. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Now we can go for motto. Are you ready? Unmute के मैं ऑप्शन देता हूँ सर. Okay, sir. Okay. Yes. Unmute कर सकते हैं सभी लोग. Yes. Sir, where is the crate? Okay. So good morning, good evening. आज मैं होस्ट करने जा रहा हूँ, इसीलिए मेरे 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 जो शब्द लटक रहा है, क्योंकि एटॉमी का जो एलाइट क्लब है, इस क्लब में होस्ट बनना अपने आप में एक गर्व की बात है। पर आज की मीटिंग में जो दोनों शानदार लीडर आने वाले हैं, उस लीडर को एडिफाई करना मेरे लिए और बड़ी बात है। तो इसीलिए मैं पहले बता देता हूं दोनों स्पीकर को कि समय का ध्यान रखें और दोनों 30-30 मिनट के अंदर खत्म करें। तो पहले जो लीडर को मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं, वो झारखंड से बिलोंग करते हैं और 14 साल कॉर्पोरेट में टूरिज्म होटल सेक्टर में मार्केटिंग और सेल्स के काम करने के बाद वो अभी अपना बिजनेस एटॉमी में ऑटो मोड में ला चुके हैं। तो वो कैसे लाएं, ये बिजनेस उनका तरीका क्या था, वो सब अपना सक्सेस स्टोरी में वो करेंगे। बट उनके बारे में थोड़ा बोल देता हूं कि लोग जो सक्सेसफुल बन जाते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, दूसरे लोग बोलते हैं उनका लक अच्छा था तो इसीलिए वो बन गए। तो नहीं, इसीलिए उनके लिए वो लक से नहीं बने हैं, वो खुद काम करके बने हैं। एटॉमी के जो लीडर हैं वो हार्डवर्किंग होते हैं, बहुत ग्राउंडेड लीडर होते हैं और मोस्ट ऑफ लीडर फर्स्ट टाइम ये नेटवर्किंग में आते हैं। तो इसीलिए उनके लिए मैं संस्कृत की 2 श्लोक उनको एडिफिकेशन के लिए बोलूंगा। तो एक है, काकतालीय बत प्राप्तम दृष्ट व्यापी निधिमग्रतः न स्वयं दैवमादते पुरुषार्थम अपेक्षते। अर्थात भले ही भाग्य से एक खजाना सामने पड़ा हो, भाग्य इसे हाथ में नहीं देता है, कुछ प्रयास चाहिए उसे उठाने का। दूसरा है, जथा वेकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण बिना दैवम न सिद्ध्यन्ति। अर्थात जैसे रथ और चैरियट एक पहिए से नहीं चल सकता, वैसे ही बिना लेबर और परिश्रम के भाग्य फल नहीं देता। तो इसीलिए जो भी बोलते हैं लक के हिसाब से हमारे लीडर बन गए हैं, वो झूठ है। तो इसीलिए वो क्या ग्राउंडेड लेवल में क्या क्या काम किया था, क्या क्या तकलीफ उनके सामने आई थी, तो वो बताने के लिए मैं आज का जो डायनामिक लीडर को आमंत्रित करना चाहता हूं और सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि तालियों के साथ स्वागत करें ऑटो डायमंड मास्टर मोहित पांडे जी का। यू आर मोस्ट वेलकम सर, नाउ स्टेज इज योर्स। वेलकम सर। मोहित सर, वॉइस नहीं आ रही आपकी।
मोहित सर प्लीज। मोहित सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। मोहित सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। वॉइस नहीं आ रही है सर। माइक को हटा कर देखें सर। मोहित सर वॉइस नहीं आ रही है आपका। माइक माइक चेक करें कृपया करके। एक बार म्यूट करके करें। सर अगर आप डेस्कटॉप से ऑनलाइन हैं तो उसमें माइक्रोफोन का जो ऑप्शन है उसका वॉल्यूम बढ़ाएं। हाँ ऑडिबल नहीं है आप अभी। उसकी वॉल्यूम सेटिंग पे देखिए, आपने माइक कहीं पे ऑफ करके रखा हुआ है। वॉल्यूम का जो सिंबल आता है उस पर क्लिक करना, वहां पे माइक्रोफोन का ऑप्शन होगा, उसको देखिए, वो म्यूट पे होगा। एक काम करते हैं रितेश सर, तब तक मोहित सर देख रहे हैं, तब तक हम इनवाइट करें क्या दीपक जी को? राइट राइट। अच्छा एक बार चेक कर लीजिए मोहित सर, अगर इससे नहीं होता है तो मोबाइल से आ जाइएगा आप, इजी हो जाएगा। अनम्यूट कर लें सर, अनम्यूट कर लें सर, अनम्यूट करें पहले एक बार ट्राई करिए अनम्यूट करके। मोहित सर वॉइस नहीं आ रही है सर। ठीक है दीपक जी को ले लेते हैं तब तक, और सर आप मोबाइल से आइए। अरे सर मोहित सर ने पिन पिन डाल दिया है। पिन 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 हटाने को बोलो उनको। कौन सा पिन? पिन ये को उनके डेस्कटॉप पे पिन आता है, वो पिन हटाने को बोलो उनको। कोई बात नहीं, तब तक दीपक जी को इनवाइट कर लेते हैं हम, फोन से उनको कनेक्ट करते हैं राइट सर। ठीक है। ओके सर जनता सर प्लीज इनवाइट ओके सर। सो ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स हमारे ऑटो डायमंड मास्टर आ नहीं पा रहे हैं, वो मोबाइल से थोड़ी देर में कनेक्ट होंगे। तो अभी मैं दूसरा जो डायनामिक लीडर है जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं और वो CMA है, पैसे में CM है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और बहुत ही ग्राउंडेड लीडर, बहुत ही हार्डवर्किंग लीडर। मैंने उनकी स्टेटस देखा है, वो कभी रात को 2 बजे 3 बजे फॉरेन की जो लीड आती है फॉरेन प्रोस्पेक्ट के साथ बात करते हुए रातों रात परिश्रम करते हैं, रातों रात लेबर करते हैं। तो इसके लिए भी एक शायरी बोलना चाहूंगा। मुझे ऊंचाइयों में देखकर हैरान है कुछ लोग, बेशक उन्होंने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। तो ये उनको पूरा सूट करता है। तो हु इज नॉन अदर देन दीपक गुप्ता फ्रॉम दिल्ली। नाउ आई इनवाइट all of our members to give a big round of applause for Deepak Gupta, and you are welcome. Now stage is yours. Deepak Gupta ji, please. मोस्ट वेलकम सर। Most welcome, sir. Welcome, sir. Welcome, sir. Most welcome. Welcome, sir. दीपक जी अनम्यूट कीजिए। अरुण सर क्या प्रॉब्लम आया है? क्या नहीं नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है? मेरी वॉइस आ रही सर अब? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनका को होस्ट आ गया। Continue कीजिए सर, था ना, तो मैं continue अनम्यूट नहीं कर पा रहा कीजिए। था। कोई बात नहीं, को होस्ट थैंक यू नहीं सो होता मच था सर। सर। आ रहा है सर, आवाज आ रही है क्या? हाँ अब आ रही है। हाँ आ रही है? मोहित सर, अब दीपक सर जी के मोहित बाद सर आपको को लेते हैं आवाज आ रही मैं चाहूंगा सर, मोहित सर को आप इनवाइट प्लीज पहले कर लीजिए। है। मोहित सर आ रहे हैं। मोहित सर प्लीज आवाज आ रही है? आवाज आ रही Okay, है? sir. रेस्टोरेंट में Mohit sir, please. Now you continue fast. आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, वीडियो ऑन कर लीजिए आप। ठीक है, ठीक, ओके।
सो थैंक यू सो मच एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, क्योंकि टेक्निकल चीज होती है और जब तक जब तक हमारे लाइफ में संघर्ष नहीं होता, जब तक कोई परेशानी नहीं आती, तब तक सक्सेस का मजा भी नहीं आता और लगता है कि चीजें यूं ही मिल गई। तो इस तरह की जो चीजें आती हैं, परेशानी आती हैं, रुकावटें आती हैं, लाख लाख रुकावटें हमारे मंजिल पे आएंगी, हमारे रास्ते में आएंगी, लेकिन हमें रुकना नहीं है, उसे पॉजिटिव रूप में लेके चलना है। तो दोस्तों, तो जयंता जी ने बड़ा ही आज संस्कृत के श्लोक से इस मीटिंग को शुरू किया है। तो मुझे भी हर जगह संस्कृत ही नजर आ रहा है, क्योंकि ये संस्कृत इतना अच्छा श्लोक बोलते हैं कि मत कहिए। और संस्कृत में तो हर जगह शिक्षा ही, सक्सेस के बारे में हम बोले या कुछ भी बोले, हर जगह वही है। तो दोस्तों, सबको प्रणाम करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, आदाब बोलता हूँ। और मैं ये बोलूंगा कि विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, पात्रत्वाद हमापनोति, धना तथा सुखम, धना तथा सुखम, धना तथा सुखम। इसका मतलब ये है कि विद्वान यानी कि विद्या जब आता है तो नम्रता भर जाता है, व्यवहार चेंज हो जाता है दोस्तों। और हमारा जो ये है मोटो है, वो भी बोलता है सर्व इन ह्यूमिलिटी। इसका मतलब है कि सर्विस तो हमें देना है, बिजनेस तो करना है, लेकिन नम्र होकर व्यवहार जो है वो उसमें नम्रता होना चाहिए। पुष्प में जो सुगंध होता है, वो सुगंध की झलक दिखनी चाहिए हमारे व्यवहार में। और हमारा मोटो यही बोलता है, लास्ट जो सेंटेंस है, सर्वहीन ह्यूमिलिटी। ये चेक कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग इस मीनिंग को कुछ और ये में लेते हैं, वो भी बहुत पॉजिटिव मीनिंग सोचते हैं, लेकिन एक्चुअल मीनिंग यही है, हाँ, नम्र होकर सर्विस देना है। तो मैं दोस्तों ये कहूंगा, मैं मोहित पांडे और डायमंड मास्टर झारखंड से, और आप लोग के बीच में आज रूबरू हो चुका हूं। और ये बहुत ही मेरे लिए गर्व, प्राउड का विषय है कि मैं आज आप लोग के बीच में हूं और मुझे मौका मिल रहा है। दोस्तों, एक छोटे से गांव से बिलोंग करने वाला, और जैसा होता है कि परिवार में एक्चुअली ये होता है कि पढ़ाई करो, अच्छा से पढ़ाई करो और आगे पूरे परिवार का नाम रोशन करना है, अपना नाम रोशन करना है, समाज का नाम रोशन करना है। तो जो माइंडसेट होता है वो पढ़ने का होता है दोस्तों। तो सरकारी स्कूल से पढ़ते हुए आगे बढ़ता गया, जब आगे गया तो देखा कि दुनिया तो थोड़ा डिफरेंट है, जहां से हम निकल कर आए हैं पूरा ही डिफरेंट है, और हर जगह संघर्ष ही संघर्ष है। बचपन में उस तरह का माहौल नहीं मिल पाया था, हालांकि हमारे फादर तो प्रिंसिपल थे और शुरू से एक संस्कार में कहीं कमी नहीं आई। एजुकेशन में फादर ने कहा कि जो पढ़ाई करना है वो पढ़ो, हमारे तरफ से कोई कमी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, जिस बैकग्राउंड से हम बिलोंग करते हैं वो संघर्ष तो होता ही होता है। और हमने जिस तरह से कंपटीशन है और सारी चीजें जहां से हम बिलोंग करते हैं वो सब देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं एमबीए करूंगा और बिजनेस मैनेजमेंट करके मैं एक अच्छा सा नौकरी लूंगा। और उससे पैसे बहुत है, पैसे कमाने का जो जज्बात था शुरू से बहुत रहा है। लेकिन जब हमने एक मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन किया तो देखा कि अरे यहाँ तो कहना ही नहीं है, किस तरह का इंग्लिश होना चाहिए, किस तरह की पर्सनालिटी होनी चाहिए, बड़े घराने से होना चाहिए, सारी चीजें। लेकिन हम लगे रहे और पढ़ाई करने के बाद जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उतरा तो देखा कि वाकई में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उस सक्सेस को हासिल करना इतना इजी नहीं है। हायर एजुकेशन लेने के बाद भी जब प्लेसमेंट हुआ दोस्तों, तो जो ऊपर लेवल पर बैठे हुए थे वो अधिक पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उनका अनुभव था, तो कोई जनरल मैनेजर कोई क्या था। और हम जब ट्रेनिंग पीरियड में प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि ट्रेनिंग तो करना ही होता है, तो फाइलें इधर से उधर करते हुए अपने कैरियर को आगे बढ़ाते हैं। और जनरल मैनेजर से मार्केटिंग का पोस्ट पे मैं 14 ईयर्स वर्क किया दिल्ली में। ये था, खूब बढ़िया चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। लेकिन जो संघर्ष था और जो सारी चीजें थी, मुझे लगा कि हर कुछ कंपनी के थ्रू गाड़ी भी है, हमारी टीम भी है, पैसे भी हम कमा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं जो सक्सेस क्या है वो वर्ड कहीं ना कहीं मिस कर रहा था। क्योंकि सक्सेस के बारे में जो चीज हमने सुना था, जो चीज पढ़ा था और जो अपने परिवार के संस्कार में पाया था, क्योंकि सक्सेस क्या है, जैसा अभी मैंने आपको कहा कि सर्व इन ह्यूमिलिटी जो हमारा वो है, या जो मैंने कहा कि आगे बढ़कर नम्र होकर ही ये सब सफलता की ही पायदान में आते हैं। तो सफलता का जो मीनिंग है वो केवल पैसे कमाना ही नहीं है। अगर हम केवल पैसे कमाएं और हम कहें कि मैं सफल हो गया, तो ऐसा नहीं है। सफलता का बहुत ही विस्तृत रूप है। पैसा एक पायदान हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ हर कुछ चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि एक सुगंध भी चाहिए, अपने व्यवहार में झलकना चाहिए, अपने हृदय में कंपैशन होना चाहिए, दया होना चाहिए।
और लोगों को क्षमा करने की शक्ति होनी चाहिए, लोगों को हेल्प करने का डेडिकेशन होना चाहिए। दूसरों के लिए ही जीना है, दूसरों के लिए ही मरना है, अपने लिए क्या जीना, दूसरों के लिए हम जिए। समाज के लिए, देश के लिए, स्टेट के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों के दुख को देखकर हम द्रवित हो जाएं, ये सारी चीजें सफलता का एक बहुत बड़ा विस्तृत मीनिंग है दोस्तों, जैसा कि मैं कहा आपको। तो मुझे लगा कि सफलता कहीं ना कहीं तो लैक हो रहा है। सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो पैसे का था दोस्तों। एक बहुत बड़ा प्रोफाइल पे होने के बावजूद भी पैसे कमा तो रहा था मैं, लेकिन वहां पर टाइम फ्रीडम नहीं था। और जिस मतलब लाइक अगर मैं छुट्टी 1 या 2 दिन भी छुट्टी लिया करता था तो अपने बॉस से पूछ कर लेना पड़ता था, उसके लिए कई दिनों से उसके लिए फॉलो अप करना पड़ता था। और अगर किसी कारण से ऑफिस नहीं जा पाया तो सैलरी कट कर दिया जाता था। सारी चीज चैलेंज जो अब देखते हैं कि होता है, देख रहे हैं। तो सफलता का मीनिंग बहुत कुछ था और उस चीज कहीं ना कहीं लैक कर रहा था। मुझे लगा कि किस तरह से सफल हुआ जाए अपने लाइफ में, है ना, सारी चीजें सब कुछ किया और करता रहा, क्योंकि कभी रुका नहीं दोस्तों, बढ़ता ही गया। जैसा कि मैं एक कहता हूँ, एक स्लोगन करता हूँ कि हर समय बढ़ना है, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। जैसा कि मैंने कहा कि द woods are lovely dark and deep, but I have promised to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। मन में, हृदय में एक जुनून था कि रुकना तो नहीं है और अपने सतत कर्म पथ पे बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं सक्सेस लैक कर रहा था। और मैं स्टडी करता ही रहता था कि कैसे 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 किया जाए। और डायरेक्ट सेलिंग का जो एक एक सुगंध वो शुरू से कॉलेज लाइफ से ही था। लेकिन जैसा मैं कहा कि शुरू से पढ़ने की तमन्ना, है ना, शुरू से कहा जाता रहा है कि पढ़ाई करो, उसी में सब कुछ है। लेकिन कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ रिलेटिव्स थे जो कि डायरेक्ट सेलिंग करते थे और मुझे अप्रोच कहीं ना कहीं वो किया था उन्होंने, और वो चीज माइंड में था। क्योंकि चीजें होती है, कभी आप कोई स्टोरी सुनते हो कि एक डायरेक्ट सेलिंग भी चीज है और जहां के लोग पैसे कमा रहे हैं, और वो इतने नजदीक के दोस्त जो कि जुड़े थे, जो उनकी बातें मैं कभी सुना नहीं था, लेकिन जब उन्होंने मेरे कानों में वो बातें की थी कि यहाँ तो करोड़ों में इनकम होता है, तो मैं जिस तरह से जॉब कर रहा था, इसी तरह से दिल्ली में एक मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कहीं पर मीटिंग में गया हुआ था, और उसी क्रम में एक डायरेक्ट सेलर थे जो कि मुझे मिल गए और उन्होंने अपना कार्ड मुझे आगे बढ़ाया और कहा कि मिस्टर पांडे, आई एम सो एंड सो, और ये आपका मेरा एक विजिटिंग कार्ड है, इस पर नाम है, आप फिर हम बात करते हैं। और 2 साल तक वो फॉलो अप करते रह गए। अपने बिजनेस में गुड मॉर्निंग होता था, और जिस पार्क में मैं एक्सरसाइज करने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाता था, वो भी जाया करते थे। और वहाँ ओपन जिम था, वो ओपन जिम में कभी कभी हम मिल लिया करते थे और एक्सरसाइज भी साथ में किया करते थे। और वो गुड मॉर्निंग और सब कुछ होता था, हैप्पी होली, जो विशेष होते हैं, हैप्पी दीपावली और जो भी होता है वो करते रहते, लेकिन कभी भी मैं उनका बात सुना नहीं करता था। एक बार ऐसी संडे का समय था और मैं घर पे ऐसे अपने रूम पे बिल्कुल ही विश्राम कर रहा था, उनका फोन आया कि पांडे जी क्या कर रहे हैं, आज आपको मुझे वक्त देना पड़ेगा 1 घंटे का। मैं कहा कि हाँ सर बताएं, क्योंकि मैं भी खाली था, संडे का समय था, छुट्टी थी ऑफिस में, और वो अपने सेमिनार में ले गए। तो एक्चुअली हृदय में, माइंड में वो चीज तो था कि डायरेक्ट सेलिंग तो होता है, पैसे तो होते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं तो पैसे होते हैं। और शॉर्ट एनालिसिस जो होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स क्या है डायरेक्ट सेलिंग का, वो तो मैं स्टडी करता ही रहा था, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स करते ही रहे थे डायरेक्ट सेलिंग, तो माइंड में तो वो चीज था ही मेरे माइंड में। और जब मैं वहां पर गया दोस्तों, तो देखा कि बहुत बड़ा स्टेडियम एक कंपनी के सेमिनार के लिए खच भरा हुआ है, और कोर्ट और अच्छे पर्सनालिटी वाले क्या है जमीन पर भी बैठे हुए हैं, और लोग आते जा रहे हैं, जमीन पर बैठ रहे हैं। और जो वहां पर हाईएस्ट अर्नर थे, उनका वो झारखंड से ही बिलोंग कर रहे थे, और अपना बैंक का जो जॉब था जनरल मैनेजर का उनका, उसको रिजाइन करके इसमें फुल टाइम उसमें कर रहे थे। और मैं उनके स्पीच को बिल्कुल एक टकटकी आंखों से देखता रहा, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि इनकम के बारे में, अपनी सफलता के बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में जब बतला रहे थे, तो मुझे लगा कि वाकई में इस इंडस्ट्री में तो पैसे बहुत है। लेकिन जिस तरह से जो मैंने स्टडी किया था कि कंपनी कैसी, प्रोफाइल कैसा होना चाहिए, कब ज्वाइन करना चाहिए और किस तरह से वर्क करना चाहिए, और यहाँ पर क्या है, ये सारी चीजें, और इसी दरमियान ये सब माइंड में चल रहा था दोस्तों। मैं आया और गदगद हो गया और कंपनी की तलाश में लग गया दोस्तों कि वाकई में ये सफलता का जो राज है
इसी इंडस्ट्री में लिखा जाएगा और यहाँ पर ही वो चीज मुमकिन है। और इस सोशल मीडिया पर एटमी के प्रोडक्ट्स मुझे दिखाई पड़े। जब मैं इसका लाइक स्टडी किया, देखा जो पैकेजिंग इतना जबरदस्त, इसके मोटो इतना जबरदस्त, इसके जो प्रोफाइल थी इतने जबरदस्त, केरी वर्ड यूज किया हुआ, कोलमार वर्ड यूज किया हुआ, एंड कंपनी तो आई ही नहीं है, आने वाली है। मैं कहा कि वाकई में यही वो क्षण है, यही वो पल है जहां की ज्वाइन करना है ना, स्टडी करने के बाद। और बिल्कुल पता नहीं लाइक एक जो चीज आपके साथ जोड़नी होती है ना, तो मुझे लगता है कि कायनात की सारी शक्तियां वो उस चीज को लाइक आपको मोटिवेट करने में लग जाती है। और वाकई में इसके साथ दिल ऐसा लगा मेरा, ऐसा लगा दोस्तों कि जिस समय हम जुड़े थे केवल यही था कि करना यही है। जॉब तो चल रहा था लेकिन दिल लग चुका था एटमी के साथ। और एक ऑफिस में मैंने लाइक अपने वर्क के लिए कहीं ओपन किया था दिल्ली में, मालवीय नगर में, और वहां पर भी बैठकर क्या मैं वो वर्क करूंगा, केवल आईडी ही लगाता रहता था मैं। और कॉलिंग पे कॉलिंग एटमी के लिए टेली कॉलिंग चल रहा है, 7 बजे 8 बजे रात तक ऑफिस में बैठे हुए हैं, चल रहा है। जो मेरे पुराने मित्र आते थे जो हमारे टूरिज्म फील्ड के थे, बोले अरे तुम क्या कर रहे हो, मैं उनको लाइनेज दिखाया करता था, ओपन करके सिस्टम लाइनेज में उनको दिखाता रहता था कि देखिए आइए आपकी भी आईडी लगा देता हूँ। तो एक जुनून सा, मोटिवेशन उस तरह से। और एक मोटिवेशन का एक था कि दोस्तों इस तरह से आईडी लग रही थी एटमी में उस समय कि कारवां बढ़ता ही जा रहे थे। वो एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन का फैक्टर था। कुछ नहीं था, प्रोडक्ट नहीं था, इनकम नहीं था, कंपनी नहीं थी, कुछ दिखाने के लिए लोगों के पास नहीं था, लेकिन जुनून था हम लोगों के पास। और हर कुछ वही जुनून वर्क किया, उसी में बड़े बड़े लीडर्स ऐसे आते रहे, क्योंकि लाइक एक माहौल होता है, एक एनवायरमेंट होता है, वो सारी चीजें होती हैं। तो इस तरह से दोस्तों कारवां बढ़ता गया और इस तरह से कंपनी का ये हुआ। और पुराने जो टॉप लीडर्स जब आते थे उनके साथ मिलकर, और जो जुनून था दोस्तों, वो सब हमारे पुराने जो लीडर्स हैं वो सबको मालूम है, जब हम मिलते थे तो वो एक अलग उस तरह का माहौल था, एक अलग तरह का टाइम था। वो सारी चीजें देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें हैं। तो ये मैं कह सकता हूं कि, और जो चीज सफलता वाकई में सफलता की हम बात करें दोस्तों, कि मैं एटमी में आकर ही सफलता को फील कर रहा हूँ। सफलता एक जर्नी है, लेकिन एटमी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मुझे सफलता के लिए ऊपर उठाता ही जा रहा है। सफलता की बात करूं दोस्तों तो लाइक एक वेल्थ के रूप में पैसे तो एटमी से मैं कमा ही रहा हूं, लेकिन जो टाइम फ्रीडम है, जो एक अच्छा एटमी में जो एक अच्छा चीज हमें हर समय सीखने को मिलता है, हम इसके वर्कशॉप की बात करें, हम इसके सेमिनार की बात करें, हम इसकी मीटिंग की बात करें, आप लोग जिससे अच्छे लीडर्स की बात करें, जिससे मिलकर मैं दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखता ही रहता हूँ। इसलिए मुझे दोस्तों ये मैं कह सकता हूं कि सफलता का जो पायदान है वो एटमी के साथ शुरू हो चुका है, और मैं वाकई में फील करता हूं कि मैं सफल होता जा रहा हूं। और ये जर्नी तो चलेगा। इसलिए एटमी ने मुझे दोस्तों उठाया है, एटमी ने लीवरेज का काम किया है। मैं जहां पर भी था अच्छे मुकाम पे ही था, लेकिन जब एटमी मेरे साथ जुड़ा तो मुझे लगा कि ये मुझे बहुत ऊपर उठा चुका, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, in terms of status, in terms of recognition, in terms of your love, affection, karuna, compassion, each and everything. अच्छा ह्यूमन बीइंग, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने का भी काफी मौका, यानी कि मैं सीख रहा हूँ। और ये सारी चीजें मुझे लगता है कि यहाँ पर सफलता का जो एक हिस्ट्री है, या मैं सफल होता जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और ये जर्नी तो आगे बढ़ना है दोस्तों, लोगों को हेल्प करने का, लोगों के हृदय में खुशियां सजोने का। जब ये सारी चीज मैं देखता हूं तो मुझे वाकई में लगता है कि मैं एक सही प्लेटफॉर्म पर हूं और सफलता की राह में मैं बढ़ रहा हूं। और जिस तरह से मैं एटमी को देखता हूं, हर जगह अध्यात्म है। जब मैं कोरिया गया तो पहले वहां पर भी अध्यात्म शिक्षा, वहां पर भी प्रेयर, अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने का देखा मैंने, जो कि लाइफ में चाहिए। सफलता का पहला पायदान है अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना। बड़ा ही मजा आता है इस तरह से। वेल्थ तो है ही, अच्छा हेल्दी इंडिया, ब्यूटीफुल इंडियंस, सफलता के पायदान में और एक पथ में अच्छा हेल्थ होना भी सफलता का परिचायक है। अच्छा हेल्थ होना, अच्छा सुंदर दिखना, पर्सनालिटी मेंटेन करना, है ना, हर कुछ। और जो वर्चुअस हैं, जो अभी अब आपको मैंने बताया, है ना, जो मोटो है,
जो चीज है, ये सारी चीजें एटमी के साथ हैं। यानी कि एटमी ने हमें उठाया है, सफलता की मार्ग पे उठाया है, उठाता ही जा रहा है। और इसलिए मैं ये बड़ा ही प्राउड फील करता हूँ कि यहाँ पर मैं सफल होकर ही रहूंगा, और वो संतुष्टि मुझे फील हो रही है लोगों को हेल्प करने में, लोगों को लोगों के लिए अपने को सेक्रीफाइस करने में, हर कुछ में अच्छा हूं मैं, इसी में संतुष्टि है दोस्तों। वो सारी चीजें एटमी प्लेटफॉर्म के थ्रू ही पॉसिबल है। इसलिए मैं सारी चीजें, जो चीज देखा था कि देशभक्ति की भावना के लिए पुष्प कहता है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तू फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीरने। अरे वो न देवता के सिर पर चढ़ना चाहता है, न कहीं बड़े महाराजा के महल में जाना चाहता है, वो चाहता है। तो मैं कहा कि अरे इसकी पुष्प का यानी कि सक्सेस क्या है ना, क्या है? बहुत ही विस्तृत चीजें हैं सक्सेस की। परोपकार पुण्याय पापायम पर पिंडनम, यानी कि लोगों के लिए परोपकार करना ही धर्म है, और लोगों को दुख देना सबसे बड़ा पाप है। ये सारी चीजें कहाँ एटमी, इतना बड़ा डोनेशन लोगों के लिए जीना है ना, कहाँ पर है? एटमी के साथ है। अब देखिए 80 करोड़ रुपीस का डोनेशन हो जाता है, इतने सारे स्कूल्स चलते हैं, इतने सारे चैरिटी होते हैं, कहाँ? तो यहाँ पर पॉसिबल है एटमी के साथ एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने का, यानी सक्सेस का जो एक मार्ग है वो एटमी है। और ये प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहाँ की कोई भी जुड़कर, कम पढ़ा अधिक पढ़ा, धनी गरीब, किसी भी वर्ण का, काला गोरा, किसी वर्ण का, हर कोई जुड़कर यहाँ पर सफलता की राह को लिख सकता है और अपना गुणगान लिख सकता है। यही मैं कहूंगा दोस्तों कि वाकई में सक्सेस का जो एक सुगंध है एटमी के साथ शुरू हो चुकी है, और संतुष्टि है, यहाँ पर संतुष्टि है, क्योंकि लाइफ का जो मकसद है यहाँ पर फुलफिल होगा, और वो सुगंधी बिल्कुल दिख रही है, और हम सभी आगे बढ़ेंगे मिलकर। इसलिए दोस्तों मैं ये कहूंगा कि एटमी के प्लेटफॉर्म को लेकर आगे बढ़ना ही बढ़ना है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा भी तुझसे पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। तो दोस्तों यही चीज मैं कहूंगा कि ये साम न विद्या न तपो न दानम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। यानी कि दोस्तों ये जो वर्चूज हैं, जो गुण है, विद्या तप दान, ये अपने आप में लाना है, ये एटमी प्लेटफॉर्म पर सीखने को मिलता है दोस्तों। और ये सारी चीजें मुझे दिख रहा है, मैं जब वर्कशॉप अटेंड करता हूँ, जब सेमिनार अटेंड करता हूँ, जब मैं कोरिया ट्रिप गया, जब मैं हैंगिल पार्क सर से मिला, जब यहाँ के जो मैनेजमेंट यानी कि जब मैं एमडी सर से मिलता हूँ, अरे क्या सुंदर व्यवहार, क्या चीज सुनने को है ना, क्या समझने को, क्या जीवन में उतारने को, लोगों को हेल्प करने का। सोचिए कितने लोग को हम साथ में लेकर कितनी सफलता की ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं कहूंगा कि एटमी जो है सक्सेस के लिए प्लेटफॉर्म है, और इसी प्लेटफॉर्म पर जुड़कर हम एटमी को लिवरेज के रूप में इस्तेमाल करके अपने लाइफ को ऊंचा उठा सकते हैं और सक्सेस हो सकते हैं। दोस्तों मैं इतना ही कहूंगा, टाइम का बहुत बाउंडेशन है, और हमारे ग्रेट स्पीकर यहाँ पर हैं जो हमारे हम लोग एक ही टीम से हैं। तो थैंक यू सो मच सभी को, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मुझे सुनने के लिए। और एक छोटा सा अनुभव मैं आपके साथ शेयर किया, और कोई गलती हुई तो हो गई होगी बोलने में, तो क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर कुछ अच्छा लगा होगा तो आप अपने लाइफ में इसको उतार सकते हैं। So thank you दोस्तों, thank you so much, thank you so much, thank you so much। थैंक यू सर। जाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एटॉमिक का कल्चर नहीं है कि पब्लिकली हम कुछ अपना इनकम शेयर करें, पर ये एटॉमिक का जो एलाइट ग्रुप है, ये हमारा फैमिली है, सब लोग आपको जानते हैं। प्लीज आपका लास्ट मंथ का इनकम बताएंगे तो हमारे पार्टिसिपेंट विमोहित होंगे। मोहित पांडे के द्वारा। सर अप्रोक्स एवरेज इनकम की मैं बात करूं तो एवरेज इनकम की बात कर रहा हूं तो 2.5 से 3 है ना, ये मेरा एवरेज इनकम बन जाता है। और ये आप लोग के डेडिकेशन से एटमी प्लेटफॉर्म के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है। और टाइम फ्रीडम तो है ही, जो कि सफलता का एक बहुत बड़ा मापदंड होता है। वेल्थ, अगर आप मनी से फ्रीडम आपको मिल जाता है। और यकीन मानिए दोस्तों, एटमी एक ऐसा ऐसा बैंक है ना, जैसे कि हम जाते हैं ना, वॉशरूम में जाते हैं, नल खोलते हैं, पानी आता रहता है, ऐसा फील होता है। और इस आपके हम सभी लोग के लाइफ में ये चीज आने वाला है। तो हाँ, यस, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर। कीजिएगा मोहित सर, सॉरी, मैं एक रिक्वेस्ट मेरी भी है, अगर आप उस स्क्रीन को मतलब कि स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर करें तो हम लोग सबको जरूर आगे शेयर करेंगे कि 7 फरवरी से लेके 7 मार्च तक का आपका इनकम 1 महीने का क्या आया होगा।
कृपया करके वो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, मैं कर दूंगा। Okay, sir. Thank you so थैंक यू much. सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। So now I request our other leader, other dynamic leader, Deepak Gupta जी, जो very grounded leader हैं, वो आए और स्टेज संभाले और आपका जो सच का सामना वो शेयर करे, पर टाइम का ध्यान रखे सर। थैंक यू सर, नाउ स्टेज इज योर्स। वेलकम दीपक गुप्ता जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले मैं लाइट ग्रुप का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे मौका दिया सबके सामने और इतने बड़े मंच पर एक बोलने का। तो हर किसी का सपना होता है कि लाइफ में कुछ करके दिखाए, कुछ करे, और मतलब प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं होता है, चाहे कोई कितनी बड़ी जॉब कर ले, कितना बड़ा बिजनेस कर ले, कुछ भी कर ले, किसी लाइफ में कहीं पे ही पहुंच जाए, लेकिन जो प्लेटफॉर्म होता है ना, जरूरी नहीं है कि हर कोई इस प्लेटफॉर्म को अचीव कर सके। और यहाँ पर एटमी समान प्लेटफॉर्म सबको दे रहा है, जहाँ पर हर बार चेहरे बदलते हैं, क्योंकि मैंने ऐसी नेटवर्किंग मार्केटिंग कंपनीज देखी हैं जहां पर कुछ ही फेस होते हैं जिसके फेस पर पूरी कंपनी चलती है। बेसिकली बोला जाए तो वो फेस ही जो है कंपनी का चेहरा बन जाते हैं। तो जिन लोगों ने पहले अगर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े होंगे तो वो अपने दिमाग में मतलब कोलेट कर सकते हैं इस चीज को कि अगर उन्होंने जो भी कंपनी करी, क्या वहां पर उस कंपनी के नाम से कंपनी चलती थी या उन लोगों के नाम से कंपनी चलती थी जो कि उसका चेहरा बने हुए थे। करेक्ट। क्योंकि कई बार क्या होता है, कंपनी हायर करती है बाहर से ऐसे ऐसे लोगों को कि उनकी होती है फैन फॉलोइंग्स होती है, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, तो उन लोगों को लोग हायर करते हैं और उसके बेस पर कंपनी पूरी चलती है, जहां ना प्रोडक्ट की कोई वैल्यू है ना कंपनसेशन। बस वहां पर क्या है, एक ब्रांड बन चुका, और जो ऊपर वाले होते हैं कमाते हैं, नीचे वालों का कुछ पता नहीं है। वो आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर वो सोचते हैं यार ये इंडस्ट्री खराब है। ये इंडस्ट्री खराब नहीं है, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। ठीक। क्योंकि एक बात समझिएगा, कई बार क्या होता है ना, आपके पास गाड़ी बहुत अच्छी होती है लेकिन रोड अगर खराब है ना, अगर रोड खराब है तो इसमें आपकी गलती नहीं है, ठीक है, इसमें रोड बनाने वाले की गलती है। तो वही हिसाब किताब है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन लोगों ने इसको इतना बदनाम कर दिया, कुछ कुछ काम करके, उल्टा सीधा काम करके, जिसकी वजह से लोग इसके प्रति नेगेटिव हो गए, खास तौर से भारत में। ठीक। तो अब ज्यादा समय मैं नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि समय मेरे पास बहुत लिमिटेड है। तो सर मैं पीपीटी अपना शेयर करना चाहूंगा आपसे पहले। अगर मेरी स्क्रीन दिखाई देती है तो आप बताइएगा प्लीज। क्या सर मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? ये सर हो रहा है शेयर हो रहा है सर। ठीक है सर। अगर मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल है तो बताइएगा मुझे आप। यस सर बता दूंगा। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए उसे स्क्रीन शेयर में। दीपक जी, दीपक एक बार नेटवर्क चेक कीजिए, शायद से हाँ, कुछ प्रॉब्लम है, इतना टाइम नहीं नेटवर्क लगना का चाहिए। इश्यू है। हाँ, एक्चुअली आपकी वॉइस भी जो है ना और वीडियो भी क्लियर नहीं है, नेटवर्क का इश्यू है दीपक। ओके। अभी भी मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या आपको? वॉइस आ रही है बट वीडियो क्लियर नहीं है। वीडियो भी ओके हमारे थोड़ा सा वो हो रहा था, ब्लर हो रहा था। ओके। आपकी कोई दूसरी डिवाइस है तो मैं उसको ऑप्शन दूं? सर दूसरी डिवाइस तो नहीं है मेरे पास अभी। राइट, या फिर मुझे आप एक जयंता सेकंड को। दीजिएगा, एक सेकंड सर, मुझे एक सेकंड दीजिएगा ऑप्शन। राइट राइट राइट, ओके। मैं जयंता सर को क्या पीडीएफ भेज दूं क्या? जयंता सर उसको शो कर देंगे? श्योर बिल्कुल। ओके सर, कोई नो इशू। मुझे बस एक मिनट। नो इशू। सर अब मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? कृपया करके देखिएगा, मुझे शो नहीं हो रही कुछ। सर मुझे दिख रही है पूरा। रितेश जी प्लीज। नहीं सर दिख नहीं रहा है। हाँ, ब्लैक ही आ रहा है मेरे को सर। यस सर। अब दोबारा से कीजिए दीपक जी जरा।
1 मिनट में कर रहा हूँ सर। अभी दिखा? सर सर्च हो चल रही रहा है है सर। बट वो नहीं हो रहा है। आप जो फाइल है आप जयंता सर को या रितेश जी को या मुझको भेज सकते हैं। 1 मिनट से मैं भेज रहा हूँ। अरुण सर को भेज दीजिए, मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ। दीपक सर केवल आपका नेटवर्क का इशू है, जितनी मेरे को जानकारी लग रही है सर आपको ऑफिस मैंने में। भेज दिया, आप एक बार पर चला दीजिए। अरुण मीना सर। मैं देख, एक मिनट। जी सर। जी सर विजिबल है, थैंक यू सर। दीपक जी जब आप मुझे बोलेंगे नेक्स्ट तो मैं जी उसको सर। नेक्स्ट करूंगा, राइट? बिल्कुल सर, थैंक यू सर। स्क्रीन पे ले रहा हूँ उसको। जी। तो जैसा कि आप फर्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं कि सच का सामना, जो आज हमें टॉपिक मिला है सच का सामना, तो इसमें हमारा 10 मिनट वैसे वेस्ट हो गया, इसके लिए सॉरी। और इसमें है कि आज जाग जाइए, नहीं तो जिंदगी भर सो नहीं पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर जो भी लोग इस मीटिंग में अभी अटेंड कर रखे हैं और अगर आपने इसको स्किप किया या मिस किया, कुछ भी अगर दिक्कत करी, तो आप लोग जो है ना अपने खुद रेस्पॉन्सिबल होंगे एटमी में सक्सेसफुल ना होने के, क्योंकि एटमी में हर कोई सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन सक्सेसफुल वही इंसान होगा जो इसको शिद्दत से करे, इसमें शिद्दत से टाइम दे। ओके, तो अब जो मीटिंग स्टार्ट हो रही है इसमें आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा हर एक बात को जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अगले 30 मिनट आपके लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और क्या पता किसको कोई भी चीज क्लिक कर जाए और वो आदमी आगे बढ़ जाए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जब मैं आया था तो सिर्फ कुछ चीजें थी, 1-2 चीजें जो मुझे क्लिक हुई थी, और उसका ही रीजन है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक टिका हुआ हूँ। ओके, तो मेरा नाम दीपक गुप्ता है, मैं बाय प्रोफेशन कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ और मैं सेल्स मास्टर हूँ दिल्ली से। सर नेक्स्ट। अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं दिल्ली से हूं और मैंने जो अपना ग्रेजुएशन किया हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैं ऑल इंडिया रैंक होल्डर भी हूं सीएमए, और इसमें जो है मेरा 12 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। और मैंने काफी सारे मतलब कि कंपनीज में जॉब किया है, जिसमें से आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी रह चुका हूं मैं, जो थर्ड पार्टी पेरोल होते हैं। उसके अलावा मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का भी पार्ट रह चुका हूँ, कोटक महिंद्रा में मैंने काम किया था। उसके अलावा एमएनसी में अभी मेरे को करीब 8 साल हो चुका है। और उसके अलावा जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो मैं 2016 जुलाई से कर रहा हूँ। और साथ में जो है मेरा ग्लोबल एक्सपोजर भी है कि मैंने बाहर भी ट्रेवल करा हुआ है। मेरा ये सब चीजें बताने का देखिए एक पर्पज ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे कैसे लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का मानना ये है कि जिनके पास कुछ करने को नहीं होता वो नेटवर्किंग करते हैं। तो ये एक मिथ है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आज के टाइम में बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर भी कर रहे हैं, पुलिस वाले भी कर रहे हैं, मिलिट्री वाले भी कर रहे हैं, बिजनेसमैन भी कर रहे हैं। क्योंकि कोविड ने सबको सिखा दिया है कि जो भी चीज है ना वो सर्टेन नहीं है, हर चीज जो है वो अनसर्टेन है। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट। अब लोग बोलते हैं कि यार मतलब कि नेटवर्किंग में है ना कुछ है नहीं, कुछ मतलब कि आप इंडियन जो मेंटेलिटी क्या होती है, इंडियन मेंटेलिटी होती है कि सिर्फ जोड़ने जुड़ाने का खेल और कुछ नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैं ये जितनी भी आप कंट्रीज देख रहे हैं ना, इस समय मैं ट्रैवल कर चुका हूँ और मैंने यहाँ पर एक चीज सब में कॉमन पाई, एक चीज जो मैंने कॉमन सीखी वो मैंने ये देखा कि जितने भी इंडिया के अलावा बाहर की कंट्रीज है ना, वहां पर क्या है, वहां पर लोग
पैसे वाले हैं। पैसे वाले क्यों हैं? क्योंकि वहां पर लोग जो है ना नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं। अगर आप बात करो यूएस की, तो यूएस में ना 24 साल का लड़का जो होता है या 25 साल का लड़का होता है या 30 साल के होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोग जो है जॉब नहीं करते, वो लोग सेल्फ डिपेंडेंट है। कैसे? क्योंकि वो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए, नेटवर्क मार्केटिंग से। ओके, आप लोग देखिएगा यूएसए ना अपना मैक्सिमम जो काम है ना वो करता है क्या? आउटसोर्स। आपने देखा होगा, सुना होगा कि लोग जो है ना इंडिया में लोग क्या करते हैं, नाइट शिफ्ट कर रहे होते हैं। बहुत लोगों ने नाइट शिफ्ट करी है, मैंने भी करी है। जब रात को आप नाइट शिफ्ट में घर वापस आते हो ना, तब मालूम पड़ेगा कि वो डर क्या होता है, कि जब आपको मतलब 1 मीटर की दूरी भी दिखाई नहीं देती और आगे गाड़ी ठुक जाती है, ठीक है। जब 4 बजे सुबह निकलते हो ऑफिस से और पता नहीं होगा 5:30 तक घर पहुंचोगे कि नहीं, क्योंकि गाड़ी रेग रेग के जो कैब होती है आपको वेट करना पड़ता है, कैब फॉग में फंस जाती है। जो चीजें मैंने फेस करी, मैं आपको सिर्फ वही चीजें बता रहा हूँ, ठीक। और ये हम पता है क्यों करते हैं? क्योंकि यूएसए ने अपना काम आउटसोर्स कर दिया है इंडिया वालों को, और इंडिया में हम जैसे लोग उनके लिए रात रात भर बैठ के काम करते हैं। और वहां पर लोग क्या कर रहे हैं, वहां के बच्चे क्या कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। और एक चीज और देखिएगा, कोई भी आप अगर हनी सिंह का गाना देखो या आप किसी बादशाह के गाने देखो, वहां पर है ना जो मान लो 25-25 साल के या 20-20 साल के जो लड़के लड़कियां ऑडी पे जो नाच रहे होते हैं, क्या वो इंडियन होते हैं एक्चुअल में? लगता है नहीं। ये लाइफ होती है बाहर की, जहां पर 24-24 साल के लड़के ऑडी चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेटवर्किंग की वैल्यू जानते हैं। जब हमारे यहाँ पर 24 साल का बच्चा पास होने के बाद नौकरी के लिए निकलता है ना, तब तो वहां से 18 साल का बच्चा नेटवर्किंग ज्वाइन करके 24 साल में फाइनेंशियल फ्री हो चुका होता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। सर नेक्स्ट। अब जिंदगी की देखिए शुरुआत कैसी होती है। जिंदगी की शुरुआत होती है इस इमेज के साथ। आप सब ने ये जो है ना ये शुरुआत करी है, तभी हम लोग यहाँ बैठे हुए आज के टाइम में। हर इंसान रोते हुए आता है लाइफ में, ठीक है। मैं भी आया हूँ, जयंता सर भी आए होंगे, अरुण सर भी आए होंगे। कोई हंसता हुआ आया था क्या? कोई हंसता हुआ आया था तो हैंड रेस कर दीजिए। ठीक है, कोई हंसता हुआ नहीं आया था, ठीक है। बट हंसते हुए जा सब सकते हैं, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पर आज का टॉपिक है सच का सामना। तो ये सच है कि हम सब रोते हुए आए थे, और हर कोई हंसते हुए जरूरी नहीं हर कोई जाएगा। कुछ लोग रोते हुए आए थे, आज भी रो रहे हैं, 1 साल बाद भी रो रहे होंगे, और 10 साल बाद भी रो रहे होंगे, और रोते रोते दुनिया से चले जाएंगे, ठीक। तो जब हम दुनिया में आए थे ना, तो उसके बाद क्या हुआ था? कि उस टाइम हमारा अधिकार नहीं था। वो एक नेचुरल फिनोमिना होता है, उसमें आदमी रोता है। लेकिन उसके बाद जिंदगी को कैसे खुशहाल बनाना है, कैसे काम करना है, कैसे लाइफ को किस मोड पे लेके जाना है, वो सब चीजें हमारे खुद के हाथ में है। वो सब चीजें हमारे खुद के हाथ में है कि हमें लाइफ में जाना क्या नहीं। तो क्या होगा ना, रोते हुए आए थे सब, रोते हुए जाएंगे, मुकद्दर के सिकंदर नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें अपने को ना दिमाग में रखना पड़ेगा कि जब बच्चा जब पैदा होता है तो वो उसके हाथ में नहीं होता कि वो रोना है हंसना है, क्या वो रोएगा ही रोएगा। बट उसके बाद की जो जिंदगी होती है ना, वो सपने बुनने शुरू करता है। और सपने कुछ भी हो सकते हैं। सपने क्या हो सकते हैं सर? नेक्स्ट स्लाइड में प्लीज। आप लोग है ना जरा एक बार सोचिएगा कि इसमें से आप अपनी लाइफ में बनना क्या चाहते थे और आज आप हो क्या? क्या आप क्रिकेटर बनना चाहते थे? क्या आप एक्टर बनना चाहते थे? डांसर, डॉक्टर, ट्रैवलर, सिंगर, फैशन, ठीक है, उसके अलावा जो गिटारिस्ट होते हैं या मेकअप आर्टिस्ट, क्या आप बनना क्या चाहते थे लाइफ में? अनम्यूट, आप प्लीज म्यूट कर दीजिएगा। आप सोचिए आप लोग बनना क्या चाहते थे लाइफ में। देखिए एक बात समझिएगा, कभी भी है ना वो आदमी आगे नहीं बढ़ता जो दूसरों को सुन के बढ़ता है, ठीक है। आदमी वो आगे बढ़ता है जो खुद की सुनता है, जो खुद के ऊपर क्या कहते हैं ना आत्मचिंतन करता है। जो आदमी, वो आदमी आगे बढ़ता है। नहीं तो सुनाने के लिए तो 50 लोग आपके सामने बैठे हुए हैं। आप खुद सोचिए कि आपका सपना क्या था और क्या आप उसको पूरा कर पाए आज तक। खुद सोचिए। आप विजुलाइज कर सकते हैं कि कभी आपसे किसी ने आपका सपना पूछा कि भाई तुझे क्या चाहिए लाइफ में? कोई नहीं पूछता सर, कोई नहीं पूछता। चलिए नेक्स्ट सर, नेक्स्ट कीजिए। तो क्या वो चीज है जो आपको आपके सपनों को पूरा करने से रोक रही है? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको आपके सपनों से आपको मतलब कि दूर करती जा रही है? क्या चीज है? आप लोग अगर चाहे तो एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप पेन्स और पेपर लेके है ना उसको लिख सकते हैं कि ऐसी कोई भी मतलब 3 चीजें जिसकी वजह से आप अपने सपने से दूर हो।
30 सेकंड दे रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं चाहो तो। आप लोग चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, नहीं लिखना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपको खुद पता होना चाहिए कि गड्ढा कहाँ है, कहाँ गाड़ी में, तो गाड़ी बहुत तेज उछलेगी सर, गाड़ी बहुत दिक्कत करेगी। तो आपको अपने गड्ढे पता होने चाहिए लाइफ के, कि कहाँ गाड़ी को ब्रेक लगानी है, कहाँ स्पीड बढ़ानी है। अगर आप हाईवे पे गाड़ी चलाओगे ना धीरे से, तो पीछे वाला ठोक देगा, और गड्ढों के ऊपर आप गाड़ी चलाओगे तो आप खुद ठुक जाओगे। तो वही चीज है कि आपकी अगर कोई भी लाइफ में अचीवमेंट के लिए कुछ भी आपने सोचा हुआ है, तो कौन सी ऐसी चीजें जो आपको रोक रही हैं उस चीजों को पूरा करने से? क्या आपने कभी लिखा डायरी में उन सब चीजों को? अपनी हम लोग जब भी करते हैं ना, जब जो भी कोई बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में हमेशा क्या करते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस, ठीक है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, उसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। वो करते हैं कि मार्केट में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसका हम लोग पता लगाते हैं, फिर हम लोग मार्केट में सामान उतारते हैं, ठीक। तो आपके अंदर ऐसी क्या चीज है कि बस आपने कह दिया यार आई लव एटमी, आई लव एटमी, आई लव एटमी। एटमी को लव करने से एटमी आपका नहीं हो जाएगा सर, एटमी को करने से होगा। मैं यहाँ पर ज्ञान दूंगा चला जाऊंगा, एक्चुअल में ये भी बिजनेस नहीं है, ये ज्ञान है। ये बस 30 सेकंड मतलब 30 मिनट में बोलूंगा, 30 मिनट आपके दिमाग में रहेगा, फिर सब जीरो है, सब कुछ नहीं बचेगा, फिर से कोरा कागज हो जाएगा। काम करना है ना, तो अपनी टीम का हाथ पकड़ो, हर टीम का पता होना चाहिए कि किसको क्या दिक्कत आ रही है। अगर आपने उनकी दिक्कतों को सॉल्व करना शुरू कर दिया ना, तो आपको आपकी तरक्की से कोई रोक नहीं सकता। अपनी टीम की तरक्की को आपको पहचानना है, अपने सपनों को पहचानना है, अपने सपनों को जो भी चीजें रोक रही हैं उसको आपको आइडेंटिफाई करके उसको खत्म करना है, ठीक है, ताकि आप लोग अपने सपनों को पूरा कर सको। सर नेक्स्ट प्लीज। कितने लोग ऐसा काम करते हैं जो अपने बिजनेस के लिए ऑफिस जाते हैं, शॉप जाते हैं, घर आते हैं, फिर दफ्तर जाओ घर आओ और दोहराओ, दफ्तर जाओ घर आओ और दोहराओ, दफ्तर जाओ घर आओ और दोहराओ, दफ्तर जाओ घर आओ 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 दोहराओ। अजीब लग रहा है ना, दफ्तर जाओ घर आओ दोहराओ, अजीब लग रहा होगा। ये हम सर पूरी जिंदगी करते हैं कि नहीं करते? हम सुन नहीं पा रहे हैं कि पागल हो गए क्या बोल रहा है ये बात, लेकिन दफ्तर जाओ घर आओ दोहराओ कितने लोग करते हैं? जब तक पैरों में जान है ना, जब तक आपको कोई बॉडी में दिक्कत नहीं है, तब तक आप यही करते हो। कई बार तो आदमी बोलता है यार काश मैं बीमार पड़ जाऊं तो थोड़ा रेस्ट मिल जाए, इतना काम कर चुका साला, क्या करे यार, ठीक है ना। तो दफ्तर जाओ घर आओ दोहराओ। और ये ऑटो वाले भाई साहब बैठे, बताओ कितने लोग ऑटो में आगे शेयरिंग करके बैठे होंगे? लाइफ है ना, मस्त लाइफ है ना। ऑटो में 10 रुपए की टिकट लेके और बैठते हैं बगल में ऑटो वाले के, जाते हैं शेयरिंग ऑटो में, बहुत लोग जाते हैं। सुबह पहली मेट्रो खुलती तो भाग जाते हैं, देखो मेट्रो बगल में है, पहली मेट्रो के साथ ही हम लोग ऑफिस स्टार्ट कर देते हैं। 5:30 बजे की मेट्रो जब पकड़ते तब 7:30 बजे तक हम लोग वहां पहुंचते, फिर ऑटो पकड़ के 8:30 बजे ऑफिस ज्वाइन करते। क्यों? कितने लोगों का ऑफिस पकड़ते जाते हुए बस छूट गई है, देखो कैसे भाग रहा है बेचारा, दिख रहा है ना। और बस वाले रोकते भी नहीं है, डीटीसी वाले तो और ज्यादा नहीं रोकते, भगा देते हैं, ठीक है। फिर ऑफिस में होते हैं लेट, और पंच होता है लेट, और फिर होती है क्या, हाफ डे लग जाता है लोगों का, करेक्ट। फिर हाफ डे के लिए बहुत बहाने बनाने पड़ते हैं, ये हो गया था वो हो गया था, किसी का कुछ दिक्कत हो जाती है, किसी को कुछ दिक्कत हो जाती है, लंगड़ा के पहुंचते हैं ऑफिस, अरे सर दिक्कत हो गई थी मुझे रास्ते में इसलिए लेट आया हूँ, है ना। फिर वापसी जाते हैं जब घर पे तो एकदम ठीक हो जाते हैं। फिर बॉस बोलता है तू आया तो लंगड़ा बन के आया था, जा रहा है तू एकदम ठीक हो गया, तो ऑफिस आ जाया कर यार, हॉस्पिटल बना दिया तूने तो ऑफिस को, है, ठीक है सर। नेक्स्ट। थोड़ा सा ऊपर, ये सारे पता है कौन है? ये हमारे इंडियन टार्जन है, सारे टार्जन देखो। टार्जन था ना वो जो लटकता था बरगद की उस पे, बरगद पे लटकता था टार्जन जंगलों में, हमने जो बचपन में देखा हुआ है। ये हमारे इंडियन टार्जन है, जो मेट्रो पे, ऑटो पे, बस पे, हर जगह लटकना जानते हैं, कहाँ पे लटक के कहाँ पहुंचना है। ये ऐसी जिंदगी भर जी लेंगे और चाहेंगे, मतलब हमारे पेरेंट्स ने कभी ऐसी लाइफ सोची होगी हमारे लिए? हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए ऐसी लाइफ सोची है क्या? बताइए, कभी सोची ऐसी लाइफ? और ये सारे पता है कौन है? ये सारे कौन है? ये सारे बीच में वो ये स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम देने के लिए पहले मेट्रो पकड़, ये ट्रेन पकड़ रहे हैं, और बाद में वो नौकरी पे जाने के लिए भी ट्रेन ही पकड़ेंगे, समझ रहे हैं? उन्होंने शुरुआत ही ट्रेन से करी है सर। टार्जन का अवार्ड किसको मिलना चाहिए बताइए?
फालतू में बोलते हैं कि टार्जन बाहर का है, इंडिया का नहीं है। टार्जन तो इंडिया में भरे पड़े, हर घर में टार्जन है, जो नौकरी कर रहा है वो टार्जन है। एग्री करते हैं तो आप हैंड रेस करिए, कितने लोगों ने ऐसे ऐसे ट्रैवल किया हुआ है, आप लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं। अपना सेल्फ, अपने आप से पूछिए, अपने आप को देखिए, समझिए कि क्या हम लोग इस लाइफ के लिए बने थे, क्या हम ऐसी लाइफ जीना चाहते थे क्या? मैं तो ऐसी चैट लाइफ नहीं बॉक्स में जीना लिख चाहता सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं सब लोग। था। बिल्कुल। और एक बात बता दे रहा हूं मैं आपको, एक और मजे की बात बता रहा हूं, जो रोबोटिक्स आ रहे हैं ना मार्केट में, जो रोबोटिक्स आ रहे हैं वो सारी जॉब खा देंगे, तो ये भीड़ कम हो जाएगी आगे जाके, क्योंकि नौकरी नहीं होंगी तो भीड़ कहां से दिखेगी। ठीक है सर। सर नेक्स्ट कीजिए। अब भविष्य की चुनौतियां क्या क्या हैं उस पर थोड़ा नजर डालते हैं। सर नेक्स्ट। अच्छा, एक बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा, अमेजोन का किसने न्यूज देखा कि अमेजोन ने लोगों को निकाल दिया? लोगों ने देखा कि एक एचआर का था जो हायरिंग कर रहा था, गूगल में था शायद वो, और वो हायरिंग कर रहा था और उसको मालूम पड़ा कि उसी की नौकरी चली गई। ठीक है, ऐसा भी हुआ लोगों के साथ। ठीक है, उसके अलावा जो लोग मान लीजिए पहले काम कर रहे थे और उसके बाद वो जब वर्क फ्रॉम होम से घर गए तो मालूम पड़ा उनकी तो नौकरी जा चुकी है। ठीक है, अब एक चीज और देखिएगा कि कई लोग इस चीज से खुश है कि हम लोग है ना यहाँ सिलेक्ट हो गए, हम लोग यहाँ सिलेक्ट हो गए। ठीक है, सिलेक्ट हो गए बहुत अच्छी बात है। हर किसी के, आप जितने भी लोग हैं ना किसी के घर में कोई ना कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जरूर होगा सर, जरूर होगा। लेकिन क्या इस चीज की गारंटी है कि आपके बच्चे भी गवर्नमेंट जॉब पा पाएंगे? है गारंटी? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया पता है सबको कि नहीं पता? अभी भी गवर्नमेंट ने खेल खेल दिया प्राइवेटाइजेशन का, जहां बिजली प्राइवेट हो चुकी है, पानी, सब जितनी भी चीजें प्राइवेट हो रही हैं सर, तो जॉब तो भूल जाइए। जो लोग आज कंधों पे वो तंगा लगा रखा है ना कि हमारे पास तो गवर्नमेंट जॉब है, मैं बहुत सेफ हूं, तो सेफ सर कोई भी नहीं है। सेफ जो है कोई भी नहीं है। सेफ सेफ कौन है? सेफ वही है जो अपने एक साथ है ना चार चार कम से कम उस पे काम कर रहा है, बिजनेस प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, जो आदमी 4 बिजनेस कर रहा है सिर्फ वही सेफ है। जो सिंगल सिंगल एक डंडे पे पाया पे कुर्सी खड़ी होती है ना, कभी सेफ नहीं होती है। एक कुर्सी है, उसके भी 4 पाए होते हैं तब वो कुर्सी खड़ी होती है। सिंगल पाए पे 3 पाए पे कुर्सी खड़ी नहीं होती, बैठोगे गिर जाओगे। कितने लोग ऐसे हैं जो मार्केट में गए उनको नौकरी नहीं मिली? बहुत लोग होंगे, इंटरव्यू दिए होंगे बहुत सारे, और एटमी में किसी को बोल दो ना कि यार उसने नो बोल दिया, तो बोलेंगे यार उसने नो बोल दिया, उसने मना कर दिया। नौकरी में देखो, एक जगह नहीं होगी तो दूसरी, एक दिन में 3-3 जगह इंटरव्यू देते हैं लोग। एक दिन में 3-3 4-4 जगह इंटरव्यू दे आते हैं, सुबह निकलते रात तक इंटरव्यू देते रहते हैं। बट एटमी में बोलते तो रोते हुए आ जाएगा, यार मेरा तो उस बंदे ने मना कर दिया, मेरे को इसने मना कर दिया, मैं तो नहीं कर रहा। कर लो जैसा ठीक लगे। सर नेक्स्ट। अच्छा, जो लोग है ना अब नौकरी से हट के जो बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी मैं बात बोलना चाहूंगा कि बिजनेस में जो चैलेंजेस आते हैं ना, वो क्या क्या आते हैं समझिएगा। सबसे पहला चैलेंज क्या है? कैपिटल है। ठीक है, कि पैसा किसी के पास होता ही नहीं है, और लॉकडाउन के बाद तो सबके पास खत्म हो ही चुका है, मानते हैं। ठीक है, उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि लोगों का बीमारी में पैसा लग गया। ठीक है, लोगों की सेविंग्स खत्म हो चुकी। आप लोगों ने पिछले 10 साल में जो भी बचा के, आप जो लखपति बने थे ना, करोड़पति नहीं बोलूंगा, इतनी सैलरी सबकी नहीं होती है, लखपति मतलब 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख बचा लिया, वो सारा लॉकडाउन के टाइम लोगों का खत्म हो चुका है, या तो बीमारी में या घर के खर्चे में। ठीक है, और अगर आप लोग अब बिजनेस का सोचोगे तो बिजनेस में बता देता हूँ क्या क्या चीजें होती हैं। बिजनेस में पहले तो आपके पास होना चाहिए स्ट्रेटेजी, कि क्या स्ट्रेटेजी है। उसके लिए होनी चाहिए पढ़ाई लिखाई, अच्छी सी डिग्री, दिमागदार आदमी होना चाहिए कि कैसे काम करना है। ठीक है, वो कर सकता है। दूसरी बात, मार्केट में क्या डर है। ठीक है, कि आपके कॉम्पिटिटर बहुत सारे होंगे, ऐसा नहीं है कि जो मतलब जो टेलीकॉम इंडस्ट्री चल रही थी आज भी वही टेलीकॉम इंडस्ट्री चल रही है। मार्केट चेंज हो चुका, 2 ही जाइंट रह गए, एयरटेल और जियो, बस। वोडा कहाँ गया पता नहीं, एयरसेल कहाँ गया पता नहीं, आइडिया कहाँ गया पता, सबकी बैंड बज गई। इन्वेस्टर, क्या आपके पास आइडिया में आपके कोई इन्वेस्ट करेगा? जरूरी नहीं है आपके कोई इन्वेस्ट करे। ठीक है, आपके आइडिया का, आपका बिजनेस का फ्यूचर क्या होने वाला है, आप कितनी कॉस्ट रखने वाले हो, कहाँ सेल करोगे, मार्केट क्या है, पोटेंशियल मार्केट क्या है आपकी। ठीक है, वो सब आपको कुछ नहीं पता, और आप लगाओगे, और इस चीज की क्या गारंटी है? आप एक बात समझिएगा कि इंडिया में जितनी भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है ना, मैं आपको डाटा बता रहा हूँ कि इंडिया में जितनी कंपनी रजिस्टर्ड होती है ना,
आप मान के चलिएगा कि 50 to 60% कंपनी है ना फर्स्ट ईयर में ही वैनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। फिर बाकी की जो बचती है वो सेकंड में हो जाती है, फिर बाकी की जो बचती है वो थर्ड में, लास्ट में 100 में से 2 या 3 कंपनी टिकती है। एटमी कितने साल से टिकी है? आई थिंक 13-14 साल हो चुके हैं। तो इंडिया एटमी को प्रूव करने की दरकार नहीं है। एटमी जब इंडिया में आई थी ना, उसी टाइम ये करीब 15 देशों में लॉन्च थी। इंडिया शायद 16वीं कंट्री थी जहां एटमी लॉन्च हुआ था, और इसके बाद ये 8 देशों में लॉन्च हो चुकी है, और अभी 40-50 देशों में लॉन्च होने वाली है, जिसमें अगले महीने बांग्लादेश का नंबर है। तो ये इसके लिए कौन बैठे हैं? इसके लिए बड़े बड़े जो कंपनी के जो फाइनेंशियल ऑफिसर्स होते हैं, जो कंपनी के स्ट्रेटेजी जो एक्सपर्ट होते हैं, वो लोग सारी स्ट्रेटेजीज कंपनी के लिए बना के दे रहे हैं। लोग बोलते हैं ये प्रोडक्ट नहीं आया, वो प्रोडक्ट नहीं आया, ये लोग क्या कर रहे हैं, हैंगिल पार्क सर को लिए बोलते हैं कि सर को ऐसा प्लान बना देना चाहिए। अरे वो हैंगिल पार्क सर है, उनको आप सिखाओगे कि कैसे प्लान बनाना है? तो जो ट्रेन मिली है ना उसमें बैठो, और जहां पे आपको जाना है वहां पहुंच जाओगे। सिंपल सा फंडा है, और इससे ज्यादा कुछ बहुत बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सर नेक्स्ट। इसमें एक ये इस मतलब जो चीज है ना, इसको कौन कौन चीज लोग जानते हैं, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अगर आपको देख के समझ में आ रहा है क्या है ये? महंगाई का जमाना सर, महंगाई दर। इसके ऊपर गाना था कि हमार पतिया तो खूब कमाए रे और महंगाई डायन खाए जाता है, ऐसे कुछ था ना गाना। ठीक है, तो आप समझिएगा कि ये कितना खा चुकी है, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। ठीक है, जो जो सब्जी की बात कर रहा हूं मैं, जो 15 रुपए किलो सब्जी थी ना, आज 100 रुपए किलो है। जो 15 रुपए किलो की सब्जी मिलती थी, 100 रुपए किलो आज के टाइम में। अब आप सोच लो कि क्या लोगे। जो दाल थी वो आप रेट देख लो क्या रेट है, आज से 2 साल पहले और अभी के रेट में देख लो आप फर्क, और अगले 2 साल में आप देख लीजिएगा क्या फर्क होने वाला है। तो क्या इसको फेस करने के लिए आप तैयार हैं? क्या लगता है जॉब में इतना इंक्रीमेंट हो जाएगा? लगता है जॉब में हो जाएगा? क्या लगता है बिजनेस में हो जाएगा? एक बात समझिएगा, जब जो एक बिजनेस जो चलता है ना, एक बिजनेस जो चलता है वो उन लोगों से चलता है जो जॉब करते हैं। समझना पहले बात, जो मेजोरिटी है ना मार्केट में, वो है जॉब करने वालों की, बिजनेस करने वाले कम है। ठीक है, आप मान लो 95% लोग काम करते हैं 5% लोगों के पास, करेक्ट? ठीक है, अब आप एक बात समझिएगा, आप कोई भी बिजनेस करते हो तो क्या होगा आगे जाके, कि वो जो 95% है ना, वो कस्टमर आपके गिरेंगे, वो बढ़ेंगे नहीं कभी भी। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका बिजनेस है ना, वो आगे जाके डाउन ही होना, बढ़ने वाला नहीं है। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो कि जिनके पास मतलब कहते हैं ना कि एक नॉलेज अगर थोड़ा बहुत कहते हैं तो नॉलेज अगर थोड़ा कम है, या जो लाइफ में मान लीजिए मैं कहता हूं कि कुछ करना चाहते हैं लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों के लिए क्या है कि अगर आपको इन्फ्लेशन से डर लगता है ना, तो भाई आप एक बैकअप सोर्स जरूर तैयार रखो, क्योंकि पहले के जमाने में और आज के जमाने में बहुत फर्क हो चुका है। आज के टाइम में क्रिप्टो ने लोगों के पैसे डुबा दिए। बढ़ा लो, क्या बढ़ाओगे? जिन लोगों ने लिए होंगे 100 रुपए का, उनकी वैल्यू आज 10 रुपए होगी, या 20 होगी, या 30 रुपए होगी। ठीक है, तो आप लोग जिसने ही पैसा लगाया, उसकी जो इनकम है ना, वो तो ये लोग खा चुके मार्केट वाले। बहुत कंपनी आ रही हैं, बहुत पैसा खा रही हैं। ठीक है, तो एक तरफ तो आपको इन्फ्लेशन खाता जा रहा है, और एक तरफ आपको ऐसी कंपनियां खाती जा रही हैं। तो जाओगे कहाँ भाई? कहाँ जाओगे बताओ? और एटमी क्या बोल रहा है? आओ मिलके काम करो, और अच्छे प्रोडक्ट यूज करो, वर्ल्ड क्लास टॉप प्रोडक्ट यूज करो, यूज करवाओ और पैसा कमाओ। ये इसमें लोगों को लगता है कि नहीं, प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं। आईफोन किस किस को चाहिए? सबको चाहिए। ऑडी किसको चाहिए? सबको चाहिए। पैसा कहां से लाओगे? कहां से लाओगे बताओ? ऑडी पैसा दे रही है क्या? ऑडी कह रही है क्या मेरे साथ जुड़ो, मेरी ऑडी खरीदो, मैं आपको पैसा दूंगी कमा के? नहीं बोलती है। आईफोन बोलता है? नहीं बोलता है। एटमी बोलता है कि मैं आपको लग्जरी प्रोडक्ट दे रही हूँ और आपको पैसा कमाने का मौका दे रही हूँ, कमाइए, खूब भर के कमाइए, है ना? सर नेक्स्ट। लाइफ में सुखी कौन है? आप पहले देख सकते हैं पहले की फैमिली और अभी क्या फैमिली देख सकते हैं। ठीक है, अब जो इन्फ्लेशन है उसने क्या कर दिया, इन्फ्लेशन में अब ये जो मेल है और फीमेल है, दोनों कमा रहे हैं, तब भी इनके घर का खर्चा नहीं चल रहा होगा। और एक टाइम था, जो ये बूढ़े अंकल बैठे हुए हैं ना बीच में फोटो के, इनकी पेंशन से पूरी फैमिली का खर्चा चल जाता था, करेक्ट और नॉट? तभी इनका पूरा परिवार साथ में है। ठीक है,
क्या आपको लगता है कि इनकी बहू कहीं जॉब पे जाती होगी? क्या लगता है? पुराने जमानों में कितनी लेडीज लोग थी जो काम करती होंगी, बताइए? कितनी लेडीज जॉब पे जाती थी, किसने सोचा है? पुराने जमाने में जो मेरा आकलन है उसके अकॉर्डिंग लेडीज लोग सिर्फ वुमन एंटरप्रेन्योर हुआ करती थी, जो सिलाई करती थी, ठीक है, जो थोड़ा बहुत ब्यूटी का काम कर लिया, कुछ भी काम कर लिया, ठीक है। लेकिन नौकरी तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी लेडीज करती होगी, मेरे को ऐसा लगता है, मानना है, ठीक है। तो ये जो भाई साहब है, और इनके घर में अगर कोई बोलता कि यार ये जाए नौकरी पे या वो जाए, ठीक है, और इसलिए क्या होता था ना, बच्चे जो थे ना वो संस्कारी हो जाते थे, क्योंकि घर में लेडीज लोग रहती थी, करेक्ट, ठीक है, एग्री करते मेरी बात से। और अब उससे देखो फैमिली में कितना प्यार आता था, सब कुछ आता था, लेकिन ये जो इन्फ्लेशन रेट आया, ये सब चीजें आई, इसने क्या कर दिया कि न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड चला दिया। अब बच्चे क्या सीख रहे हैं, बड़ों से अलग रह के रहना सीख रहे हैं, वही चीज वो फॉलो करेंगे आगे, करेक्ट। सब फोन में घुस चुके हैं आज के टाइम में। और एक बात बता रहा हूं, जितने भी लोग दिल से एटमी कर रहे होंगे ना, जितने भी लोग दिल से एटमी कर रहे होंगे, उनके पास फोन में मोबाइल गेम खेलने का, रील्स देखने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जब भी मोबाइल खुलता होगा सिर्फ ग्रुप की चैट चेक करते होंगे, नए नए क्रिएटिव बना के इधर का मैसेज उधर फॉरवर्ड करते होंगे। मोबाइल ऐप एटमी का उनका 10 बार नहीं 50 बार दिन में खुलता होगा, और वो ऑर्डर लगाते होंगे। ये चेक नहीं करते होंगे कि मेरा लेफ्ट कितना हुआ, मैं राइट, वो देखते होंगे कि मेरा डाउनलाइन का कितना हुआ। उसकी जो हिस्ट्री होती है ना, उसमें 50 आईडी खुली रहती होंगी डेली की, कि इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसके में सिर्फ खुद का आईडी नहीं होगा। उसका जब वो खोलता है ना, तो उसकी मेमोरी में सिर्फ खुद की आईडी नहीं होगी। और अगर आपकी मेमोरी में खुद की आईडी है ना, तो आप सेल्फिश इंसान हो, और आप एटमी में आगे तो बढ़ नहीं सकते। आपके मोबाइल में आपके डाउनलाइंस की आईडी खुल के आपको पता होना चाहिए लेफ्ट राइट किसकी मैचिंग निकल रही है, किसका क्या हो रहा है। क्योंकि जब आपकी डाउनलाइन की मैचिंग निकलेगी तभी आप सक्सेसफुल होगे। क्योंकि एटमी का फंडा ही ऐसा है, 2 लेफ्ट और 2 राइट तो चाहिए भाई। आपसे अकेले से कुछ ना हो पाएगा, 5 लोगों की टीम है बस। और भीड़ के साथ काम करने की जगह है ना, सिंपल सा फंडा क्या है, भीड़ के साथ काम करने की जगह 5 लोगों के साथ काम करो, और वो 5 पांडव तैयार कर दो जो साला 100 कौरवों पे भारी भरे। हर किसी के पीछे पड़ने का दरकार नहीं है। जो बात कर रहा है आपसे ठीक है, नहीं कर रहा तो आपको तो 5 लोगों से पकड़ के रखना है कि यार मेरे को इससे बात करनी है, ठीक है। नेक्स्ट सर। अब लास्ट बात करूंगा क्योंकि टाइम का थोड़ा कमी है, तो सर 5 मिनट और ले सकता हूँ ना? जी जी, कंटिन्यू कीजिए जी। तो अब इसमें क्या है कि जो एटमी है, एटमी में आपको क्या क्या एटमी में आपको आपकी समस्या का समाधान नजर आता है? मैं आपसे सिंपल सी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कभी भी आप कर रहे हो ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, या तो बोलते हैं यस या बोलते हैं नो। कई लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर एक नाव पे बैठते हैं, ठीक है, और वो भी बिना बिना उसके, क्या कहते हैं उसको, चप्पू बोलते हैं, क्या जो नाव चलाने का चप्पू होता है शायद ना, ठीक है। तो तो वो होता ही नहीं उनके पास, बस नाव में बैठे हुए, अब नाव ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, और उनसे पूछो कहाँ हो? जी मैं तो नाव पे बैठा हूँ। तो सामने लगा सोचेगा अब ये तो चला नाव में, नदी में कहीं तैर रहा होगा, कहीं जा रहा होगा, है ना। उसको क्या पता किनारे पे बैठा हुआ है, ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे हट रहा है। तो अगर आपको लाइफ में कोई भी काम करना है ना, देखो या तो आदमी जिंदा होता है या मुर्दा होता है, बीच में तो नहीं होता, ठीक है। तो उसी तरीके से या तो आप करो या आज ही छोड़ दो, टाइम मत खराब करो अपना, बिल्कुल टाइम मत खराब करो। जो आपको अच्छा लगता है वो करो, लेकिन टाइम मत खराब करना। और करो तो इतनी शिद्दत से करो कि हर कोई बोले कि यार ये बंदे ने करके दिखा दिया। तो क्या आपको अपनी समस्या का समाधान नजर आता है? समस्या कौन कौन सी? फाइनेंशियल और हेल्थ, 2 समस्याएं, फाइनेंशियल और हेल्थ, ठीक है। कि यहाँ पर प्रोडक्ट यूज करके क्या आपके हेल्थ में सुधार आ रहा है? क्या लोगों को अच्छा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप रिकमेंड कर रहे हो, वहां से कमा रहे हो, करेक्ट। दूसरा, क्या आप एटमी को केवल जोड़ने वाली कंपनी मानते हो? मैं पहली ऐसी कंपनी देखी है मैंने जो रिकमेंड करने वाली है। एटमी रिकमेंडेशन वाली कंपनी है, एटमी जोड़ने वाली कंपनी कभी नहीं है। जो जोड़ने वाली कंपनी होती है ना, वो प्लान दिखा के जोड़ती है। एटमी प्लान दिखा के नहीं जुड़वाती है, एटमी क्या करवाती है? प्रोडक्ट यूज करवा के जुड़वाती है, विश्वास करवा के जुड़वाती है। जो जोड़ने वाली कंपनियां होती है वो प्लान दिखाती है, लालच देती है, तब लोग जुड़ते हैं। एटमी में लोगों को रिजल्ट मिलता है तब वो जुड़ते हैं एटमी में।
जितने भी सक्सेसफुल लीडर हैं एटमी में, वो सारे के सारे यूजर हैं, वो सिर्फ प्लान के बेस पर नहीं आए। बहुत लोग ऐसे मीटिंग में बैठे होंगे, गारंटी दे रहा हूँ, जिनको एटमी का प्लान नहीं पता होगा, जो एटमी के यूजर हैं और इसलिए वो मीटिंग में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट है, क्या एटमी से अच्छा विकल्प बिना निवेश के विश्व स्तरीय व्यवसाय के लिए संभव है? मुझे बताइए कि अगर आप एक समोसे का दुकान खोलते हो ना, तो समोसे का दुकान खोलने के लिए आपको तेल भी चाहिए, कढ़ाई भी चाहिए, गैस भी चाहिए, मैदा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है, आलू भी चाहिए, उबालने के लिए कुकर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है। और वो समोसे की दुकान में बोलता हूँ कि आज आपने यहाँ खोली है, 2 दिन के बाद आपको दूसरी जगह खोलनी है, फिर तीसरी जगह खोलनी है, और सेम उसी शहर में, तो क्या वो पॉसिबल है कि हर एरिया आप कवर कर लो? पॉसिबल है क्या? और कितने साल लगेंगे? वही प्लेटफॉर्म आपको एटमी दे रही है, सब कुछ बना बनाया प्लेटफॉर्म दे रही है, और आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर यूज करना है और यूज करवाना है बिना इन्वेस्टमेंट के। लोग बोलते हैं हमारा पैसा डूब गया, तो अरे भाई क्या डूब गया है यार? आप बताओ क्या डूब गया? पैसा क्या डूब गया? क्या आप अगर शैम्पू एटमी का, मतलब बाहर का शैम्पू मान लो आपको 400 रुपए का आता है, समझना मेरी बात, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, बाहर का शैम्पू 400 का, एटमी का 1000 रुपए का, ठीक है, मतलब बाहर आपको मिल रहा है नोकिया, एटमी दे रहा है एप्पल का फोन, ठीक है। और अब उसके बाद क्या हुआ, जब और लोग बोलते हैं हम महंगा क्यों ले, अरे भाई आप जो वो 400 वाला सामान ले रहे हो ना, वो आप 40 साल भी लोगे तो वो 400 से बढ़ के इन्फ्लेशन के साथ 500 का ही होएगा। क्या आपके पॉकेट में पैसा आया? नहीं आया। लेकिन 1000 रुपए का शैम्पू आप 1 साल यूज तो करो, आपके पास पैसा अगर और रिकमेंड करवा दिया, टीम बना दिया, तो पैसा कैसे नहीं आएगा? शैम्पू तो फ्री का हो गया। पूरी मीटिंग में कोई एक इंसान ऐसा नहीं होगा जिसने कोई लीगेसी क्रिएट करी हो, कि मतलब एक पेस्ट की भी, अगर एटमी में आप कमा रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप 1300 रुपए भी कमा रहे हो, सिर्फ 1300 रुपया, ठीक है, 1321 रुपया महीने का, तो आप समझ लेना आपने अपने घर में ना शैम्पू और टूथपेस्ट फ्री कर दिया। और जब आप जाओगे ना, तो आपकी जो जनरेशन है वो शैम्पू और टूथपेस्ट फ्री का यूज कर रही होगी आपके नाम पे। बोलो कौन सी कंपनी ऐसा करके दे रही है? एटमी के अलावा ऐसी मार्केट में कौन सी कंपनी है जो प्री लॉन्च दौर में है? कोई और कंपनी है जो लॉन्च हो रही है कहीं पर? और बता दो कितनी कंपनियों के नाम है ऐसे? जो पौधा जड़ फैला रहा होता है ना, उसी पौधे को अगर आपने पकड़ लिया तो उसके सारे फल आपके ही होंगे, याद रखना, पहले बता रहा हूं मैं। होता है कि नहीं होता? जिस जमीन को आपने पकड़ ली शुरुआत में, जमीन आपकी हो गई ना। गुड़गांव में जाकर देख लो कितने सारे लोगों ने करा था हिसाब किताब। तो एटमी का बहुत ज्यादा जो है अभी मार्केट में चलन है, 2 साल में लोग देख चुके हैं और बाहर की कंट्रियां भी देखेंगी। तो नेक्स्ट हम पॉइंट पकड़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि एटमी एडवांस देकर प्रोडक्शन को जारी रखती है? क्या ये चीज पता है? ये वाला पॉइंट सबको, लोगों को, एक वीडियो है 5 मिनट का, उसमें बताया गया ये लाइन कि एटमी में प्रोडक्शन बंद ना हो ना, इसलिए एटमी क्या करती है पता है? एटमी जितने भी उसके डिस्ट्रीब्यूटर जहां से प्रोडक्शन का सामान बन के आता है ना, उनको एडवांस पेमेंट पहले से दे देती है, ताकि प्रोडक्शन ना रुके। मतलब मटेरियल का पेमेंट बाद में नहीं, पहले चला जाता है एडवांस में। प्रोडक्शन नहीं रुकेगा तो कॉस्ट तो बराबर रहेगी। 2 साल में एटमी ने किसी प्रोडक्ट के ऊपर 2 रुपए भी बढ़ाए क्या? सेम प्रोडक्ट का प्राइस है। बाकी चीजों पे आप जाके देखो, हर चीज का प्राइस बढ़ चुका है। लास्ट पॉइंट जो है वो क्या है? एटमी कर्जा मुक्त है, एटमी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। क्या वसूली कर लोगे? जो मैंने ये पॉइंट्स आपको बताए हैं ना, ऐसी कोई भी कंपनी मार्केट में उपलब्ध ही नहीं है जिसके ऊपर ये सब चीजें अवेलेबल हो। सेशन में क्योंकि मुझे आधा घंटा मिला है, तो मैं इतनी ही बातें बोल पाऊंगा। अगर नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा तो कुछ और नई नई चीजें आप लोगों के लिए जरूर लेके आऊंगा। और सर नेक्स्ट स्लाइड पे आप प्लीज चलिए। आई थिंक खत्म हो चुका पूरा। तो थैंक यू सो मच सर, अरुण मीना सर और जयंता बिहारी सर और पूरे लाइट क्लब को, जिन्होंने मुझे मौका दिया आज प्रेजेंटेशन देने का। और एक शानदार अनुभव रहा। मतलब बीच में कुछ ग्लिचेस भी आए, बट एक कहते हैं ना कि जिसको भगवान को कुछ देना होता है ना, पहले भगवान उसकी परीक्षा लेता है। तो हमारे साथ परीक्षाएं बहुत हुई हैं, तो शायद इसलिए आप लोग के सामने बैठे हैं। तो जिन लोगों की परीक्षा नहीं हुई है ना, तो भगवान को बोलो, भगवान मैं तैयार हूँ, मेरी परीक्षा तो ले। तो मेरी परीक्षा ही नहीं लेता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको भगवान ने पानी में धक्का ही नहीं मारा तो आप तैरना क्या सीखोगे यार? बताओ। तो इसलिए हर चीज के लिए भगवान को थैंक्स हमेशा बोलिए, ताकि आप लोग जो है ना और सुदृढ़ बने, आप और मजबूत बने, और अपनी टीम को हमेशा अपने साथ रखिए, उनसे बात करिए। उनके बारे, आपके टीम को कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि आप अपने बारे में सोच रहे हो। हमेशा आप उनके बारे में ही सोचिए, उनके बारे में बात कीजिए। तब आपकी टीम है तो आप हो, आपकी टीम नहीं तो आप भी नहीं।
सिंपल सी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अगर मतलब महंगाई जो आपका सफलता जो है ना, सफलता का स्वाद वही आदमी जानता है ना जो ग्राउंड फ्लोर से 20वें माले तक गया है, क्योंकि उसने क्या करा है ना 20वें माले तक का पूरा रास्ता देखा है। और जो आदमी लिफ्ट से जाता है ना, लिफ्ट से जाता है तो क्या होता है, जिस दिन लिफ्ट खराब हो गया ना, वो ऊपर का रास्ता जानता नहीं कि कैसे पहुंचना है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि शॉर्टकट अपनाते हैं और कहते हैं हम तो सीधा ऊपर पहुंचेंगे, और वो फिर रास्ता भटक जाते हैं। तो जितने भी लोगों ने ये रास्ता जान लिया ना कि हाँ पहले पहला फ्लोर आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा, 5वां, 10वां, फिर 20वां, तो उसको पता है कि यार कब आग लगेगी तो मेरे को किस विंडो से निकलना है। तो ऐसे तैयार रहिए, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो 250 लोग जो हमारे साथ कनेक्टेड रहे अभी तक। तो थैंक यू जयंता सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब आज का सेशन में इतना ये सार मैं बोल रहा हूँ कि एक तो ऑटो डायमंड मास्टर जो अपना बिजनेस ऑटो मोड में ले गए हैं और एक ऑटो मोड में लाने वाले हैं 1-2 साल के अंदर। तो आज की सेशन में यही सीख मिली कि हम जो अभी पार्ट टाइम कर रहे हैं, जो तो फुल टाइम कर रहे हैं, जिसका बिजनेस ऑटो मोड में आ गया है वो तो ठीक है, और ऑटोमी जैसा अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, तो हमको क्या करना है, हमको ये अपॉर्चुनिटी को ऑटो मोड में लाना है 4-5 साल के अंदर। और जो दीपक गुप्ता जी से सीखने को मिली, दफ्तर जाओ, घर आओ और दोहराओ, इसको हमें दोहराना नहीं है। 4-5 साल के अंदर हमारे बिजनेस को ऑटो मोड में लाना है, और हमारा मोटो ये होना चाहिए, घर में रहो, फैमिली को टाइम दो, जहां इच्छा वहां जाओ, अपनी मर्जी से जियो और दोहराओ। थैंक यू सर। अरुण सर, अब मोटो के साथ एंड करेंगे क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल जयंता सर, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ और डायरेक्टली हम मोटो पे चलेंगे। अनम्यूट कर सकते हैं सभी लोग और मोटो के लिए रेडी हो जाइए। रेडी? देखो इसमें भी कहाँ है, देखो देखो अभी हम तुमको दिखा देते। थैंक यू ऑल।